in collaboration with Firoz Gandhi College, Raebareli. Once again, on behalf of the psychologist as an association of psychology and on behalf of Firoz Gandhi College, Raebareli, we welcome you to all of you in particular webinar. Once again, welcome to all of you. And before this, I would like to call organizing secretary of the particular webinar, Utkarsh Srivastava, for further proceeding. Utkarsh? A very good evening to all of you. Handing over this program to the Miss Harleen Kaur for proceeding all the necessity and all the details. Miss Harleen Kaur. Good evening, one and all. Thank you, Utkarsh. Thank you, Amit sir, for the welcome note. We welcome you all on behalf of the psychologists and Association of the Psychologists, and in collaboration with Firoz Gandhi College, as sir already said, Raebareli. We welcome you all on this one-day webinar. We have organized this one-day webinar on the theme of World AIDS Day to celebrate the same. The theme is Ending the HIV Endemic, Equitable Access, Everyone's Voice. In this webinar, we would be having two esteemed speakers with us, as rightly said by Amish sir, one by one, and we would be having their session. Um, After, we will be having Deep Prajwalan and Shlok play. So I would request Utkarsh if he can have it on screen. ज्योति परं ज्योति दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोऽस्तुते. Thank you so much, Utkarsh. After Deep Prajwalan, now I would request Professor Ramjal sir, former professor in Head Department of Applied Psychology, VBS Purvanchal University, Jaunpur. He is the General Secretary of CPAI to speak on the topic Community View Towards Ending the HIV Endemic, Conceptions and Misconceptions. Over to you, sir. Thank you, Harleen. First of all, I express my sincere thanks to organizers who have invited me to talk on HIV and AIDS on a very special day, today on World AIDS Day. I will present some facts about HIV and AIDS, and I would like to present the facts in both the mediums, Hindi and English, so that it will be easier to understand everybody. So as you people have seen, the
topic of the webinar, and how to eradicate it, and what are the views of community towards HIV/AIDS. I consider it as an important one. Next. So, when we come to the topic, HIV and AIDS, it is such a common word which is prevalent in society. Everybody is aware with the concept HIV/AIDS, and as we know, HIV, human immunodeficiency virus, it is a virus that attacks the body's immune system. If HIV is not treated, it can lead to AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. This is the just common things about the HIV, what is HIV and what is AIDS. Now, when we go in the history of the HIV, ये हम पाते हैं कि HIV का इन्फेक्शंस ह्यूमन में कैसे आया, यह सेंट्रल अफ्रीका के एक प्रकार के चिंपैंजीज के द्वारा ह्यूमंस में आया, और चिंपैंजीज वर्जन जो था वायरस का, उसको सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या SIV कहा गया, जो लोगों में इसलिए आया कि लोगों ने उनका शिकार किया चिंपैंजीज का मीट के लिए, और वो उनके ब्लड के थ्रू वे इन्फेक्टेड हुए। तो हम यह कह सकते हैं कि HIV/AIDS originated in Africa in the early 20th century and is a major public health concern and cause of death in many African countries. AIDS rates vary dramatically, although the majority of cases are concentrated in southern Africa. So it is now clear that Africa was the center through which this virus spread to the whole world. When we go with the African continent, इसे कहा गया कि African continent is the home to about 15.2% of the world's population, more than 2/3 of the total infected worldwide. Some 35 million people were Africans, of whom 15 million have already died. ये एड्स की गंभीरता को व्यक्त करता है। सब सहारन अफ्रीका alone accounted for an estimated 69% of all people living with HIV and 70% of all deaths in 2011. The AIDS epidemic caused by HIV found its way to the United States. Now we are coming to a more developed country, United States, where as early as 1960, but was first noticed after the doctors discovered clusters of Kaposis sarcoma and pneumocystis pneumonia in homosexual men
in Los Angeles, New York City, and San Francisco in 1981. In 1986, when we come to our country, we have found that in 1986, the first known cases of HIV in India were diagnosed by Dr. Suniti Solomon and her student Dr. Salappan Nirmala among 6 female sex workers in Chennai, Tamil Nadu. In the same year, the government of India established the National AIDS Committee within the Ministry of Health and Family Welfare. In 1992, on the basis of National AIDS Committee, the government set up the National AIDS Control Organization, NACO, to oversee policies and prevention and control programs relating to HIV and AIDS, and the National AIDS Control Program for HIV prevention. Subsequently, at the state level, the state AIDS control societies were set up in the states and union territories, and SACs implemented the NACO program at the state level but have functional independence. The first phase was implemented from 1992 to 1999 and focused on monitoring HIV infection rates among high-risk populations in selected urban areas. In 1999, the second phase of the National AIDS Control Program was introduced to decrease the reach of HIV by promoting behavior change. The Prevention of Mother-to-Child Transmission Program, PMTCT, and the provision of antiretroviral treatment were developed. A National Council on AIDS was formed during this phase, consisting of 31 ministries and chaired by the Prime Minister. The second phase ran between 1999 and 2006. We would like to present some key facts about the HIV and AIDS. और पहली बात तो यह है कि HIV continues to be a major global public health issue, having claimed 36.3 million lives so far. There is no दूसरा है कि there is no cure for HIV infection. However, with increasing access to effective HIV prevention, diagnosis, treatment, and care, including for opportunistic infections, HIV infection has become a manageable chronic health condition, enabling people living with HIV to lead long and healthy lives. If you remember, once upon a time, HIV and AIDS were considered such a fearful facts, नाम लेने से ही लोगों को भय उत्पन्न हो जाता था HIV एड्स को नाम, इसलिए उस समय HIV और एड्स का जो स्वरूप इतना भयानक था, इतना वह कंटेजियस था कि लोगों में एक भय व्याप्त होता था HIV और एड्स के इन्फेक्शन के बारे में। और संख्याएं बताती हैं कि जो अफ्रीकन रीजन में किस तरह से लोगों की संख्या ज्यादा थी, वहाँ पर जो लोग थे उनमें उनके हैबिट्स में कोई ऐसी चीजें थी जिसके नाते उनकी संख्या बढ़ती जाती थी। और अगर देखा गया कि 2020 में केवल 6,80,000 लोग इस HIV रिलेटेड डिजीज से लोग मर चुके, और 1.5 million people acquired HIV.
In India, populations which are at a high risk of HIV are female sex workers, men who have sex with men, injecting drug users, and transgenders, Izras. HIV, as we have mentioned earlier, HIV infection in India was first detected in 1986 among female sex workers in Chennai. Today, with an estimated 5.134 million infections, India is home to the second largest population of people living with HIV and AIDS. This article describes the state of the epidemic in India, the main contributing factors and suggestions for changes that should be made in the management of the epidemic. Just we can see the extent of the problem in our country. The executive director of the Global Fund for AIDS, TB and Malaria suggested that in 2004, India overtook South Africa. See, it is very alarming. Once upon a time, South Africa, African countries were the main place of the AIDS and HIV. But in 2005, it was suggested that the India overtook South Africa in having the largest number of people living with HIV/AIDS in the world. The true prevalence of HIV in India is still debatable. Some of the available estimates of the incidence have been carried out among sex workers in Maharashtra to 22.1 per 100% and drug users in Chennai 4.53%. There is an urgent need for more studies estimating incidence of HIV in India. The case reporting system for HIV in the country requires improvement, and sentinel surveillance has detected HIV in states that had not reported any. Studies show that HIV may have jumped from chimpanzees to humans far back as the late 1800s. Over decades, HIV slowly spread across Africa and later into other parts of the world. We know that virus has existed in the United States since at least in the mid to late 1970s. Let us, after key facts, come to the symptoms, how we can diagnose the HIV/AIDS. And some people have flu-like symptoms within 2 to 4 weeks after infection, called acute HIV infection. These symptoms may last for a few days or several weeks. Possible symptoms include the fever, chills, rash, night sweats, muscle aches, sore throat, fatigue, swollen lymph nodes, and mouth ulcers. But some people may not feel sick during acute HIV infection. These symptoms do not mean you have HIV. Other illnesses can cause these same symptoms. See a healthcare provider if you have these symptoms and think you may have been exposed to HIV. Getting tested for HIV is the only way to know for sure. What are the stages of HIV? When we analyze the different stages of the HIV, we find that there are mainly 3 stages of the HIV infection. The stage 1 is the acute HIV infection. People have a large amount of HIV in their blood. They are very contagious. Some people have flu-like symptoms. This is the body's natural response to infection. Some people may not feel sick right away or at all. Only antigen antibody tests or nucleic acid tests NATs can diagnose acute infection. The second stage is chronic HIV infection. This stage is also called asymptomatic HIV infection or clinical latency. HIV is still active but reproduces at very low level.
People may not have any symptoms or get sick during this phase. Without taking HIV medicine, this period may last a decade or longer, but some may progress faster. People can transmit HIV in this phase. At the end of this phase, the amount of HIV in the blood, called viral load, goes up and the CD4 cell, जिनको हम T cell के रूप में कहते हैं, white blood cells हैं, CD4 cells counts goes down. The person may have symptoms and virus levels increase in the body, and the person moves into stage 3. People who take HIV medicine as prescribed by the nurse never move into stage 3, and stage 3 is the acquired immunodeficiency syndrome AIDS. This is the most severe phase of HIV infection. People with AIDS have such badly damaged immune systems that they get an increasing number of severe illnesses called opportunistic infection. People receiving an AIDS diagnosis when their CD4 cells count drops below 200 cells or if they develop certain opportunistic infection. People with AIDS can have a high viral load and be very infectious. Without treatment, people with AIDS typically survive about 3 years. How it is transmitted, how the HIV is transmitted, we should also go with it. So HIV can be transmitted via the exchange of a variety of body fluids from infected people, such as blood, breast milk, semen, and vaginal secretions. HIV can also be transmitted from a mother to her child during pregnancy and delivery. Individuals cannot become infected through ordinary day-to-day contact, such as kissing, hugging, shaking hands, or sharing personal objects, food, or water. What are the risk factors? Behaviors and conditions that put individuals at greater risk of contracting HIV include having unprotected anal or vaginal sex, having another sexually transmitted infection such as syphilis, herpes, chlamydia, gonorrhea, and bacterial vaginosis, sharing contaminated needles, syringes, and other injecting equipment and drug solutions when injecting drugs, receiving unsafe injections, blood transfusions, and tissue transplantation, and medical procedures that involve unsterile cutting or piercing, and experiencing accidental needle stick injuries, including among health workers. How the HIV test for screening and diagnosis can be done? HIV tests are very accurate, but no test can detect the virus immediately after infection. How soon a test can detect HIV depends upon different factors, including the type of test being used. There are 3 types of HIV diagnostic test already told you people: nucleic acid test, antigen antibody test, and antibody test. Let's look for the actual virus in the blood. This test is very expensive and is not routinely used for HIV screening unless the person recently had a high exposure or a possible exposure within early symptoms of HIV infection. A NAT can usually detect HIV infection 10 to 33 days after an exposure. Then there is antigen antibody test. Look for both HIV antibodies and antigens. Antibodies are produced by your immune system when you are exposed to viruses like HIV. Antigens are foreign substances that cause your immune system to activate. If you have HIV, an antigen called P24 is produced even before antibody develop. Antigen antibody tests are recommended for testing done in labs
and are now common in the United States. An antigen antibody test performed by laboratory on blood from a vein can usually detect HIV infection 18 to 45 days after an exposure. Then in antibody tests, look for antibodies to HIV in your blood or oral fluid. Antibody tests can take 23 to 90 days to detect HIV infection after an exposure. Most rapid tests and the only FDA approved HIV self tests are antibody tests. In general, antibody tests that use blood from a vein can detect HIV sooner after infection than tests done with blood from a finger prick or with oral fluid. An initial HIV test usually will either be an antigen antibody test or an antibody test. If the initial HIV test is a rapid test or a self test and it is positive, then user should go to the health care provider to get follow-up testing. If the initial HIV test is laboratory test and it is positive, the laboratory will usually conduct follow-up testing on the same blood sample as the initial test. Although HIV tests are generally very accurate, follow-up testing allows the healthcare provider to be sure diagnosis. How to prevent the HIV, and at one time we were of the view that the prevention is the only way to just to get rid of or to be not to be in the contact of the HIV. Individual can reduce the risk of HIV infection by limiting exposure to risk factors. Key approaches for HIV prevention, which are often used in combination, include male and female condom use, testing and counseling for HIV and STIs, testing and counseling for linkages to tuberculosis care, voluntary medical male circumcision, use of antiretroviral drugs for prevention, harm reduction for people who inject and use drugs, and elimination of mother to child transmission of HIV. Though it was recommended that still today it is not treated, it is untreatable, it cannot be treated. But the advancement of the medical science and tried to put some treatment procedures, and uh, HIV disease can be managed by treatment regimens composed of a combination of three or more antiretroviral drugs. Current antiretroviral therapy does not cure HIV infection but highly suppresses viral replication within a person's body and allows an individual's immune system recovery to strengthen and regain the capacity to fight off opportunistic infection and some cancer. Since 2016, WHO has recommended that all people living with HIV be provided with lifelong ART, including children, adolescents, adults, and pregnant and breastfeeding women, regardless of clinical status of CD4 count. By June 21, 187 countries had already adopted this recommendation, covering 99% of all people living with HIV globally. In addition to the Treat All strategy, WHO recommends a rapid ART initiation to all people living with HIV, including offering ART on the same day as diagnosis among those who are ready to start treatment. By June 2021, 82 low and middle income countries reported that they have adopted this policy, and approximately half of them reported countrywide implementation. Globally, 27.5 million people living with HIV were receiving ART in 2020. This equates to a global ART coverage rate of 73%. However, more efforts are needed to scale up treatment, particularly for children and adolescents.
only 54% of children were receiving IRT at the end of 2020. The very important aspect of the HIV and AIDS is the stigma and discrimination attached with HIV. The question, what is stigma? HIV stigma is negative attitudes and beliefs about people with HIV. It is the prejudice that comes with the labeling an individual as part of a group that is believed to be socially unacceptable. Here are a few examples. Believing that only certain groups of people can get HIV, making moral judgments about people who take steps to prevent HIV transmission, feeling that people deserve to get HIV because of their choices. And what is discrimination? While stigma refers to an attitude or belief, discrimination is the behaviors that result from those attitudes or beliefs. HIV discrimination is the act of treating people living with HIV differently than those without HIV. Here are few examples. A healthcare professional refusing to provide care or services to a person living with HIV, refusing casual contact with someone living with HIV, socially isolating a member of a community because they are HIV positive, refusing to people as HIV are positive. What are the effects of HIV stigma? It has affected the emotional well-being and mental health of the people living with HIV. People living with HIV often internalize the stigma they experience and begin to develop a negative self-image. They may fear they will be discriminated against or judged negatively if their HIV status is revealed. There are a number of causes of stigma, the lack of awareness, information aware, and the people, the fear prevailing among the people about HIV. Here I would like to say something about the stigma and discrimination. Here I would like to tell you people that we have some programs in the Purvanchal University Jaunpur on AIDS. And here I would like to tell you about the stigma and discrimination, how it is prevailing in the society, even in the rural areas. And stigma and discrimination was so severe that it was beyond our expectation. I can quote one incident of the Jaunpur. There is a place like Kheta Sarai. I had got this in the newspaper. एक आदमी बॉम्बे में वो रहता था और बॉम्बे में हाल ही वाज ऑफ 35 years of age और बॉम्बे में हुआ HIV इन्फेक्टेड हुआ. वो घर आया, उसकी वाइफ भी इन्फेक्टेड हो गई और अल्टीमेटली वो आदमी एक्सपायर कर गया. और आप सोचिए कि उस गांव के उसके रिश्तेदार या कोई भी आदमी उसके आदमी के डेड बॉडी को छूने को तैयार नहीं था और उसका परिणाम हुआ कि उसने स्वयं अपने हस्बैंड की चिता किसी तरह से जलाई. ये तो डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा की बात थी. मैंने वहां पर जौनपुर में एक कुछ प्रोजेक्ट हम चलाते थे, तो प्रोजेक्ट में ये हमने ऐसे ही प्रश्न खड़ा किया अपने स्टूडेंट्स के सामने कि क्या ये HIV एड्स के पेशेंट्स क्या हम लोगों को जौनपुर जैसी जगह पर भी मिल सकते हैं. क्योंकि हम लोगों के मन में एक अवधारणा ये रही है कि HIV और एड्स के पेशेंट ज़्यादातर महाराष्ट्र में हैं और कर्नाटका में हैं, इस तरह की जगहों पर ज़्यादा हैं, तमिलनाडु में हैं, और कुछ ड्रग इंजेक्टिंग यूजर्स जो है वह नॉर्थ ईस्ट में है. यह एक अवधारणा हम लोगों के मन में रही.
लेकिन यह बात कल्पना के परे थी कि जौनपुर जैसी जगह में भी HIV के पेशेंट हो सकते हैं। मैंने अपने उन स्टूडेंट्स को एक बात कही कि लेट अस सर्च आउट क्या है यहाँ पर। तो सबों ने बताया, बच्चों ने ही बताया कि सर गांव में HIV पेशेंट्स हैं। और हमने फिर ये कहा कि फिर तुम एक प्रोजेक्ट लो और गांव में सर्वे करो, देखो, पता करो कहाँ HIV इन्फेक्टेड हैं। और आप जानते ही हैं कि HIV इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करता, वह अपने रोग को छुपाता है और वह जल्दी वह अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए या कहीं भी अपने आप को एक्सपोज नहीं करता है। वो करता क्या है कि इन लड़कों को जब हमने कहा कि तुम पता करो, तो जो गांव के पास के जो डॉक्टर्स हैं, हर गांव के पास आपको एक दो डॉक्टर्स मिल जाएंगे, बच्चों ने उनको कांटेक्ट किया और उनसे यह पता लगाया कि किस गांव में कौन सा व्यक्ति HIV पॉजिटिव है। और वह उन घरों में गए, उन लोगों से, उनके परिवार से मिले। और पहले तो लोग रिफ्यूज किए, लेकिन इन सबों ने समझाया कि हम लोग केवल आप लोगों से बातचीत करने आए, कुछ इसके बारे में भ्रम दूर करने के लिए आए। तो लोग तैयार हुए और उन्होंने उन एड्स पेशेंट को देखा, जानना चाहा, उनसे मिलना चाहा। तो लोगों ने बताया, दिखाया। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार से, ये बताना चाहता था आपको कि वे जो एड्स पेशेंट्स थे, घर के उस हिस्से में टूटी चारपाई पर बिना किसी बिस्तर के पड़े मिले, जहां पर बैल बांधे जाते हैं या जानवर बांधे जाते हैं। और दूर से उनको खाना किसी तरह से दे दिया जा रहा था। वो जानते थे कि मुझे मरना है, लेकिन उसके पहले ही उनकी मौत उनके सामने थी, क्योंकि परिवार के लोग ही उसके साथ ऐसा भेदभाव रखते थे। यह एक चीज देखने को, तो 48 केसेस की लाइव प्रोफाइल हमारे स्टूडेंट्स ने तैयार किया। और हम लोगों ने पाया कि उन गांवों में लोगों के बीच में कितना डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा किस प्रकार से फैला है। कुछ परिवार के लोग नहीं डिस्क्लोज करना चाहते थे, क्योंकि उससे उनके परिवार की शादियां, उनके परिवार के लोगों के साथ लोग पूरे अपने गांव के लोगों के संबंध खत्म हो जा रहे थे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा वहां पर व्याप्त था। अब हमने जरा जानना ये चाहा कि क्या स्थिति है, क्या केवल जो आए हैं वहां से, बॉम्बे से या कहीं से इन्फेक्ट होकर के आए हैं वही एड्स पेशेंट्स हैं, या कुछ नए एड्स पेशेंट्स पैदा भी हो रहे हैं। मैंने वो चीज के लिए हमने एक प्रोजेक्ट लड़के को दिया कि जरा पता करो कि क्या हम इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स तो मेघालय और कोहिमा और नागालैंड और कहाँ हमने सुना था, नॉर्थ ईस्ट में। तो उसने बताया कि नहीं सर, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स तो जौनपुर शहर में है। हमें जो आश्चर्य हुआ, और उस लड़के ने 100 इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स को उसने पता लगाया। और वो पता लगा कि वो इंजेक्शन में वो नशे का पदार्थ भरते थे और एक गोले में बैठ जाते थे और सिरिंज को वो शेयर करते थे और नशा का सेवन करते थे। और इस तरह से वो जो इन्फेक्टेड पर्सन था उसके माध्यम से और लोगों में भी वो फैलता था। तो ये एक चीज सिनेरियो हमको जौनपुर जैसे शहर में भी देखने को मिली। आपके सामने एक फोटो है, नेक्स्ट फोटो एक है, आप आगे बढ़ाइए फोटो को। हाँ, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, यह एक आप देखिए कि ये जो HIV पॉजिटिव लोग हैं वो करें तो क्या करें। समाज में उनका डिस्क्रिमिनेशन है, कोई पूछने वाला नहीं है, हर जगह से उनको तिरस्कार है। तो हमने वर्ल्ड डे डिपार्टमेंट में वर्ल्ड एड्स डे मनाया। और जौनपुर में एक संस्था हमको मिली, उस संस्था का नाम था JNP+। हमने पूछा ये JNP+ क्या है।
तो उन्होंने बताया कि जीएनपी प्लस जो है वह एड्स पेशेंट्स का अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें केवल एड्स पेशेंट ही हैं और उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने पदाधिकारी है। इसमें आप जो देख रहे हैं, जो व्यक्ति माइक पर जो देख रहे हैं, यह फुल ब्लोन एड्स पेशेंट और यह व्यक्ति जो है वह ही द प्रेसिडेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। हमने उसको बुलाया और हमने कहा कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए। आप दूसरा ये जो देख रहे हैं यंग फेलो, ही वाज HIV पॉजिटिव, यह भी उस जीएनपी प्लस ग्रुप का वो व्यक्ति है जो कि HIV से ग्रसित होने के बाद भी वो विभाग में आया और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया कि किस प्रकार की स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन से ये ग्रस्त हैं। ये कुछ डॉक्टर को हमने बुलाया जो कि HIV और इस पर उन्होंने लेक्चर दिया कि मैडम स्मिता श्रीवास्तव है, इन्होंने हम लोग विभाग में एक रेड रिबन क्लब बनाया, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के माध्यम से ये रेड रिबन क्लब गठित हुआ, जिसके माध्यम से सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग वर्कशॉप पीयर एजुकेटर के लिए हमने आयोजित किया था। डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव उसमें आई और उन्होंने अपना लेक्चर दिया। तो इस प्रकार से यह एड्स कितना भयानक रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है। और आज कम से कम वर्ल्ड एड्स डे के माध्यम से कम कुछ चीजें एड्स के बारे में चर्चा हो जा रही है, उस समस्या की गंभीरता को भी हम समझ पा रहे हैं। अतः मैं इस संस्था को मैं धन्यवाद करूंगा, बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने कि वर्ल्ड डे पर कम से कम यह आयोजित किया और एक रास्ता बनाया कि हम कम से कम जो एड्स पेशेंट्स हैं उनके साथ हम एक सहृदयता का भाव रखें। और मनोवैज्ञानिकों के लिए एक बात और आई कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे उन हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति एज काउंसलर की गई है और साइकोलॉजिस्ट को भी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली हैं और वे एड्स पेशेंट की काउंसलिंग करके उनको एक कंसोलेशन उनको मिल रहा है। और अब वह भयावहता धीरे धीरे कम होती जा रही है और अब लोगों में एक समझ विकसित हो गई है। लोग पूरी तरह से या अवगत हो चुके हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से ये एड्स फैलता है, उससे वो बचना चाह रहे हैं। और हम समझते हैं कि अगर इस तरह के कार्यक्रम होते रहे, लोगों के बीच में हम जागरूकता फैलाते रहें तो निश्चित रूप से हम अपनी भूमिका को सार्थक ढंग से समाज के समुदाय के सामने रख पाएंगे। इन शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for this enriching session. ये बात बिल्कुल सही है कि स्टिग्मा, स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इक्वालिटी नहीं रहती और सोसाइटी एम्पैथेटिक बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो ये एक्चुअली हम लोगों को समझना चाहिए और इसके हिसाब से ही काम करना चाहिए कि हम इस चीज को जितना रिड्यूस कर पाएंगे वो डिजीज या डिसऑर्डर उतना कम होता चला जाएगा। तो उसके साथ ही आई वुड लाइक टू कॉल आवर सेकेंड स्पीकर, Mr. Vishnu Saran, sir. He is an assistant professor, Department of Psychology, Feroz Gandhi College, Raebareli. He would be speaking and giving us the session on the topic HIV/AIDS, challenges and barrier to prevention and intervention. Over to you, sir. Thank you for inviting me to this forum. First of all, सबसे पहले तो मैं अपने अग्रज जो अभी बोल रहे थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर लाल, उन्होंने बहुत ही विस्तार से पहले ही इसकी चर्चा की है, तो सबसे पहले उनको मेरा प्रणाम। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश, हमारी कन्वीनर डॉक्टर शामिनी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री उत्कर्ष जी, डॉक्टर अमीश असिस्टेंट प्रोफेसर,
विनय जी और असित कुमार जी, लेक्चरर ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी, और पायल मैम जिन्होंने अभी मेरे लिए बताया। आप सभी को नमस्कार कहता हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन बेसिकली जिस बात को लेकर के है वो HIV से जुड़ी हुई इन चीज़ों पर फोकस करता है कि आखिर क्या बातें हैं HIV से जुड़ी हुई जिनके कारण इसका रोकथाम वाला उपचार होते हुए भी, मैं इसको क्योर नहीं कह रहा हूँ, गुरुजी ने पहले ही बहुत स्पष्ट रूप से इसे बता दिया है, इसके होते हुए भी क्यों इस पर हम आगे प्रगति नहीं कर पाते, क्यों ऐसा होता है कि मरीज या तो दवा होते हुए नहीं दवा को एक्सेस करना चाहते हैं या फिर दवाओं के अभाव में जीते हैं। कुछ थोड़े भाग्यशाली मरीज हैं जिन्होंने दवाएं ली और बीच में छोड़ दिया, और अब जिन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के बारे में गुरुजी बता रहे थे उनमें रेजिस्टेंस देखे जाने लग गया है पिछले 1 दशक में। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और मैं इसी की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज आया हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपसे एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन वाली स्लाइड को ओपन कर लूँ जिसके कुछ हिस्से शायद आपके लिए रेपिटेटिव होंगे, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। आज के दिन यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत WHO ने एक स्लोगन रखा है। मुझे आशा है कि ये स्क्रीन आपसे शेयर हो रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिए तो आगे बढ़ जाऊं। जी सर। हाँ जी सर। थैंक यू। आज के ही दिन यूनाइटेड नेशंस WHO और उनकी एक संस्था है जिसको बोलते हैं UNAIDS, ये विश्वव्यापी रूप से इस बीमारी पर, इस महामारी पर नजर बनाए हुए हैं और इन्होंने इस परेशानी से ऊब करके एक तरह से कहें तो एक स्लोगन दिया, एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स, और इन्होंने इस पर आज कई सारे प्रोग्राम कराए हैं। एक ऐसा ही प्रोग्राम इनका यूरोपियन सेंटर्स में चल रहा था जिसकी एक्सेस ओपनली चल रही थी, और ये लोग इस बात से परेशान हैं कि जो रास्ते मिल रहे हैं उपचार के उसका भी अच्छा उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा। और ये जुड़ा है वायरस की बनावट से और जैसे वो फैलता है इस प्रक्रिया से। जरा इसमें आगे चलते हैं। मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ ही बातें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैं लेकर के नहीं आ रहा, जो प्रमुख बातें हैं मैं उन्हें लेकर के आ रहा हूँ। भाग्य से ही कहूँगा, गुरुजी ने इसे ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से बता रखा है। तो हम वायरस और एड्स, ये 2 शब्द हैं, HIV और एड्स, इन्हें थोड़ा जल्दी से देख लेंगे। उसके बाद कुछ डिस्कवरी जो इसके बारे में हुई, ये इसका कुछ पृष्ठभूमि जैसा है, इसे पहले देख लेंगे और फिर कुछ प्रोमिनेंट चैलेंजेस की बात करेंगे जो पहले भी काफ़ी हद तक बताई गई हैं। तो शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। ये रेट्रोवायरस कैटेगरी का वायरस है और ये बड़ा ही चालाक किस्म का इसका सिस्टम है। ये हमारे शरीर की स्वाभाविक रक्षा प्रणाली को बहुत ही आसानी से बीट कर देता है। इसके 2 कारण हैं। पहला, उसके नाम जो आप देख रहे हैं कि वह एक रेट्रोवायरस है, और दूसरा लेंटिवायरस तरह का रेट्रोवायरस है। सबसे पहली चीज ये कि ये वायरस शरीर में प्रवेश करके एक सेल के अंदर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता है। और हमारी जो सामान्य ज्ञान है, हम इसे बहुत डिटेल में अभी नहीं जाने वाले, पर अपने सामान्य ज्ञान से हम जानते हैं कि हमारी नेचुरल सेल्स में क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, हमारी स्वाभाविक हेल्दी सेल्स में, और इन क्रोमोसोम्स में ही हमारा जीन होता है। और इसी जीन के कारण कई 25,000 के आसपास फंक्शनल जीन्स की वजह से उस तरह के मॉलिक्यूल्स बनते हैं।
तो ये वायरस बड़ी ही चालाकी से हमारे क्रोमोसोम में, हमारी हेल्थी सेल की क्रोमोसोम में जाकर के उसका हिस्सा बन जाता है, हमारे डीएनए का हिस्सा बन जाता है। ये हमारे शरीर में एक एनवलप्ड स्वरूप में, जो यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, एक घेरे की तरह से प्रवेश करता है। इसके अंदर इसके ये 2 आरएनए के स्ट्रैंड्स हैं। शुरुआत में ये इसी तरह इनकैप्सुलेटेड होता है अपनी बॉडी के बाहर, कई सारे इसमें एनवलपिंग प्रोटीन्स होते हैं और उसके बाहर निकले हुए ये स्पाइक्स हैं जिनसे ये अटैच करता है CD4 रिसेप्टर साइट पर हमारे इम्यून सिस्टम की टी लिम्फोसाइट सेल पे, जैसे अभी सर बता रहे थे। इसका पहला काम है तुरंत अटैच हो जाना शरीर में, घुसते ही, और ये ऐसा कई जगहों से कर सकता है शरीर में। जो शरीर का एपिथेलियम है, जो हल्का सूक्ष्म एपिथेलियम है, जैसे मुंह पर, जनेंद्रियों पर, यहाँ तक कि जीआई ट्रैक्ट्स और किडनी में भी देखा गया है कि ये इन्फेक्शन फैला देता है। तो ये हर जगह ऐसे एपिथेलियम पर जाकर बाइंड करने के लिए सक्षम है। जहां भी इसे इम्यून सेल्स मिलती हैं, ये उनसे शुरुआत करता है। ये फ्यूज कर जाता है सेल मेम्ब्रेन से, हेल्दी सेल की, उस सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में दाखिल होता है, एंटर करता है, और फाइनली इसका ये जो आरएनए है, हर एक आरएनए डुप्लीकेट होकर के 2 डीएनए जैसा हेलिक्स बनाता है, जिसे डबल हीलिक्स कहा जाता है आमतौर पे। डीएनए को आप वही कहते हैं। और ये स्वस्थ सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद स्वस्थ क्रोमोसोम की हिस्सा बन जाता है, और उसके बाद ये उस सेल से अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। एक CD4 सेल, एक डिफरेंशिएटेड सेल, एक प्रकार की ये आत्मरक्षा में लगती हुई सेल है। कम से कम इन्फेक्टेड है तो एक दिन में 1000 वायरस की कॉपीज बना सकती है। तो आप सोच ही सकते हैं कि ऐसी हजारों सेल्स होती हैं, किस भारी मात्रा में ये रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। और इस प्रक्रिया में जब ये मल्टीप्लाई करता है तो उस हेल्दी सेल के रिसोर्सेज को खराब करते हुए उसे अंततः नष्ट करा देता है। वो सेल में एक्स्ट्रा सेलुलर लिक्विड भर के वो सेल डिस्ट्रॉय होती चली जाती है। तो ये एक सेल से दूसरे सेल पर नए तरह से फैलते फैलते ये मैसिव स्पॉनिंग का तरीका, एक एजेंट से कई सारे एजेंट बनाते हुए ये पैथोजन मल्टीप्लाई करता है। लेंटिवायरस, रेट्रोवायरस का मतलब ये हुआ कि ये आरएनए से डीएनए, हेलो, ये आरएनए से गुड इवनिंग मैम। ये आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होता है, जबकि स्वाभाविक रूप से वायरसेस डीएनए लेकर के आते हैं और आरएनए में जो नेचुरल प्रोसेस है शरीर में वो डीएनए टू आरएनए का चेंज है, जबकि ये रेट्रोवायरस इसका उल्टा करता है पहले फेज में, हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा देने के लिए। इतना ही नहीं, गुड इवनिंग मैम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी एक साथी का माइक ऑन है, प्लीज उसे मैनेज कर लीजिए। Vishnu sir, your PPT is not moving. Yes, I have kept it there. Okay. And I'm requesting you, किन्हीं एक साथी का माइक ऑन है, काइंडली हमें अपनी ओर से म्यूट करें। जी आप अपना माइक ऑफ करें प्लीज। सुशील वर्मा जी माइक ऑफ। मैम यू कुड डू इट फ्रॉम योर ओन साइड। आपसे रिक्वेस्ट है कि माइक ऑफ कर दीजिए। थैंक यू मैम। ओके, सो इसे रेट्रोवायरस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले आरएनए टू डीएनए एंड देन बैक फ्रॉम डीएनए टू आरएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज बनवाता है। इसे लेंटिवायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बड़ा स्लो एक्टिंग है। जैसे अभी अभी सर ने बताया कि ये काम करने से पहले, इन्फेक्शन के बाद कई दिनों तक यूं ही पड़ा रह सकता है, अपनी कॉपीज ही बनाता रह सकता है और सेल्स के अंदर स्पॉनिंग कर सकता है। ऐसा लगभग 1 दशक तक हो सकता है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहे, देखकर पता ही ना चले कि उसे कोई बीमारी है। सिर्फ इन्फेक्शन के पहले स्टेज में, जैसे गुरुजी बता रहे थे, कुछ
सिम्टम्स आते हैं और फिर उसके बाद सालों तक कोई भी लक्षण आता ही नहीं। फॉर ईयर्स द पर्सन इज एसिम्प्टोमेटिक। तो लेंटिवायरस इस स्लो एक्शन को ही कहते हैं कि पहले ये सफिशिएंट संख्या में इम्यून सेल्स, प्रमुखता CD4 सेल्स का नुकसान करता है। CD4 काउंट 500 से भी नीचे चला जाता है, आमतौर से वो हजारों का है, 5000 से लेकर के भी ऊपर रहता है। वो 500 से भी कम हो जाता है, कुछ केसेस में 4 तक काउंट आता है जब कल्चर किया जाता है ब्लड का। तो ये लेंटिवायरस उतनी देर रुकने और उसके बाद सफिशिएंट घात पहुंचा देने के बाद फिर अपना एक्शन करने की वजह से इसे लेंटिवायरस कहते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ जानकारी थी जो बहुत जरूरी है जानने के लिए। ये भी समझना जरूरी है कि बाकी और वायरसेस की तरह ये सिर्फ एक ही फॉर्म में नहीं है, ये भी म्यूटेट होता जा रहा है। इसकी 2 मेजर सबटाइप्स मिली, पहली HIV-1 और दूसरी HIV-2। HIV-1 के अंदर भी सबटाइप्स है और HIV-2 के अंदर भी सबटाइप्स है। HIV-1 में ग्रुप M नामक एक सबटाइप है जो लगभग 90% ह्यूमन इन्फेक्शंस के लिए अकेले अकाउंटेबल है। जैसे आपको बता दिया था कि इसके अर्ली फेज में एक्यूट इन्फेक्शन होता है और इस इन्फेक्शन के कारण, इस फर्स्ट फेज के इन्फेक्शन के कारण कुछ लोग अब जानकारी के कारण अपना टेस्ट करा लेते हैं, वरना पहले शुरुआत में पता भी नहीं चलता था कई लोगों को कि उन्हें इन्फेक्शन हो चुका है। वो इसे नॉर्मल फ्लू जैसे ही सिम्टम समझते थे जैसा कि वो पता चलते थे पहले। तो इसमें उनका जानकारी का अभाव, वो शुरुआती दौर का जो 1980 का दौर गुरुजी बता रहे हैं, वो वहाँ रिस्पॉन्सिबल था। आज का डेटा सर ने खुद ही बता दिया, 1920 का लगभग 37.7 मिलियन टोटल रिपोर्टेड केसेस हैं। ये बड़ी भारी संख्या है। इतने सारे लोग आज के दिन अकेले 2020 तक कुल रिपोर्टेड केसेस थे, जिनमें कि 1.5 मिलियन नए इन्फेक्टेड केसेस थे जो रिपोर्ट हुए। तो उन्होंने एक बात पे और बल दिया था कि हर जगह से एक बराबर रिपोर्टिंग की भी फैसिलिटी नहीं है और रिपोर्टेड डेथ्स एक बार फिर कुछ 680,000 के बराबर आ रही है। यूएनएड्स का ये पिछले साल का डेटा है। एड्स एक एडवांस्ड स्टेज को कहा जाता है जो कुछ 1 दशक के बाद आती है। इसके बारे में भी सर ने काफी हद तक बता दिया है। किसी किसी व्यक्ति में ये 10 साल से भी ज्यादा हो सकता है, किसी में ऑन एन एवरेज 5 to 3 years हो सकता है। सो इट टेक्स टाइम। हमारे अंदर ही अलग अलग तरह की इम्यूनिटी का भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कुछ लोगों में CD8 सेल्स हैं, कुछ कम्युनिटीज में जो कि अफ्रीका में रहती हैं, पिग्मी ट्राइब्स की तरह हैं, हंटिंग गैदरिंग ट्राइब्स जैसे, उनमें CD8 सेल्स की वजह से कुछ बचाव दिखता है, वो इस तरह से बीमार नहीं दिखते। और ऐसा ही एक मरीज इन्होंने यूरोप में भी पाया था कि जिसके CD4 सेल्स में भी म्यूटेशन थे, इस प्रकार के कि वायरस उस पर अटैच ही नहीं कर पाता था। इस वजह से कुछ उम्मीद नए इलाज के सिस्टम्स के लिए हाल में बनी है। एड्स एक बार सेट इन हो जाने का मतलब है कि शरीर एड्स की दशा में इस सिंड्रोम के आते हुए ज्यादातर सामान्य ऐसे पैथोजेंस जो कि रोज रोज की दशा में हमारे आसपास रहते हैं, उन्हें रोकने में सक्षम नहीं रह जाता। ये फंगल, वायरल, बैक्टीरियल अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं और शरीर के अलग अलग हिस्सों में हो सकते हैं। और एड्स जब और प्रोग्रेस करता है तो इसके साथ हार्ट की बीमारियां, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, कैंसर्स, लिवर की बीमारियां, रीनल बीमारियां, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था कि ये वायरस लगभग बॉडी के हर एक टिश्यू में जाता है, इंक्लूडिंग न्यूरल टिश्यूज। तो ब्रेन टिश्यू में भी इससे डिमेंशिया देखा गया है। और ओवरऑल अब हालांकि एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, फिर भी प्री मैच्योर एजिंग भी दिखती है इवन विथ ट्रीटमेंट। साथ ही मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी दिखते हैं। कोर मेंटल हेल्थ की सेकेंडरी डायग्नोसिस HIV एड्स की दशा तक आते आते दिखने लग जाती है, क्योंकि मरीज जैसे कि बताया गया बहुत मजबूर और लाचार से दिखाई देते हैं।
एक बार जो समझने की चीज है यहाँ, जो बहुत जरूरी चीज है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन। वो मंत्र जो बार बार सारे ही माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो विश्व से एड्स और अन्य ऐसी संक्रामक महामारियों से जूझ रहे हैं, आज के दिन भी हम ऐसी एक महामारी से जूझ रहे हैं, उसमें ये चीज बहुत जरूरी है, पहले पहचान कर लेना और पहले ही उसमें उपचार शुरू कर देना। एड्स आने की दशा पर अगर एंटी रेट्रोवायरल शुरू करते हैं तो ये इतना लाभकारी नहीं होता। HIV का इन्फेक्शन जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाए उतना ही जल्दी अगर उसके साथ इंटरवेंशन भी शुरू कर दिया जाए तो ये बढ़िया रहता है। हिस्ट्री के अनुसार देखें तो इसे लगभग 1984 में एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स जो कि यूरोपियन है, लुई पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस के डॉक्टर गैलो और डॉक्टर ल्यूक मोंटैग्नियर, और उसके अलावा अमेरिका में USA में डॉक्टर जे लीवी, इन दो, और इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के भी कुछ रिसर्चर हैं जिन्होंने भी ये प्रयास किया, लेकिन इन दोनों ने लगभग उसी समय पर ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये एक रेट्रोवायरस है जो बड़ी चालाकी से इम्यून सिस्टम को अटैक किए जा रहा है, और उन्होंने इसे आइसोलेट किया और दोनों ने अलग अलग तरह के वेरिएंट्स अपनी अपनी पॉपुलेशन में से खोज के निकाले। इसके बाद लगातार दशकों से इनका रिसर्च जारी है, जिससे दवाइयों की कुछ उम्मीद बनी है। नई तरह की दवाइयां, ये लगातार वैक्सीन बनाना चाह रहे हैं मगर उसमें सफलता नहीं मिल रही। एक ट्रायल हुआ है, पिछले ही दशक में ट्रायल हुआ है, पिछले 2 साल पहले, कोरोना से कुछ 2 वर्ष पूर्व इस पर ट्रायल्स हुए हैं साउथ ईस्ट एशिया में, हमारी ही नेबरिंग जो कंट्रीज हैं मलेशिया वाली साइड में, तो यहाँ पर उसकी उपयोगिता इतनी सिद्ध नहीं आई है। जब से ये पहली फाइंडिंग आई तब से वर्ल्ड वाइड एफर्ट्स शुरू हुए हैं ट्रैक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या स्ट्रेन्स हैं, किस तरह से ये म्यूटेशंस आगे बढ़ते हैं, इसको समझने के लिए ये लगातार प्रयास अब जारी हैं। HIV दूसरे ही वायरसेस की तरह बड़ी तेजी से म्यूटेट करता है, मतलब अपने फॉर्म को बदलता जाता है, उसकी जो RNA की कोडिंग है हर एक रेप्लिकेशन पे वो बदल जाती है। इसलिए ही वो किसी एक दवा से कंट्रोल नहीं होता, और दूसरा क्योंकि वो सेल के अंदर छिपके रहता है इसलिए भी उसे जड़ से खत्म कर पाना मुश्किल होता है। लगभग हर 10 रेप्लिकेशन पर, ऐसा जे लेवी की टीम ने बताया है कि लगभग हर 10 रेप्लिकेशन पर एक नया थोड़ा बदला हुआ स्वरूप में HIV स्ट्रेन बनता है, और ये बड़ा ही भयभीत करने वाली बात हो सकती थी, पर वो ये भी कहते हैं कि बड़े ही कम ऐसे स्ट्रेन्स होते हैं जो इनमें से वास्तविकता में हार्मफुल हो, ज़्यादातर इतना हार्म नहीं पहुंचा पाते। इनफैक्ट वो डीएक्टिवेट कर जाता है शरीर, बहुत आसानी से उनको डीएक्टिवेट करा ले जाता है, फिर भी वो हजारों की मात्रा में रोज HIV के लिए जो जरूरी बात हम जाननी है, इसलिए कुछ तुरंत की बातें जो उन्होंने बता भी दी हैं, पर मैं जस्ट उसे समराइज करता हुआ ही चल रहा हूँ। HIV डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। इसका सबसे पहला सेटिंग होम ह्यूमन इम्यून सिस्टम की CD4 सेल्स हैं, और ये ऐसा कर करके जो T सेल्स हैं थाइमस में, थाइमस ग्लैंड से ज़्यादातर ये निर्मित होती हैं, ऐसा करके ये पहले उसे ही निष्क्रिय करने में 10 साल के आसपास एक लंबे समय तक बनता रहता है। दूसरी जटिल बात इसके लिए ये कि ये सिर्फ एक वायरस के फॉर्म में खून में घूम रहा हो ऐसा नहीं है, ये तो DNA, हेल्दी सेल्स के DNA में भी अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेता है। इसीलिए इसके लिए वैक्सीन बनाना इतना बड़ा सरदर्द है। ये बेहद ही सरदर्द की बात है, क्योंकि अब वो सेल इन्फेक्टेड हो गई है। तो जब हम पैथोजन आमतौर से कहते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे स्वस्थ जो शरीर है और उसके जो हिस्से हैं, चाहे कितने भी सूक्ष्म हो, उनसे अलग, उनसे वृहद कुछ हमारे शरीर में दाखिल हो गया है। लेकिन इस वायरस में जो बात है वो ये है कि वो उस स्वस्थ सेल का ही हिस्सा बन जाता है, और इसीलिए शरीर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये ऐसे ही है जैसे कि मॉनिटर के अंदर ही से जा करके
परेशान करने वाला अगर काम करे तो मॉनिटर कैसे डिटेक्ट करेगा कि कौन परेशान कर रहा है? इट्स लाइक दैट. सो दैट इज हाउ इट ऑपरेट्स. और इसलिए इसका एक सही क्योर ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज होता है. तो वायरस तो इन्फेक्ट कर ही सकता है, लेकिन ये इन्फेक्टेड सेल जिसके ह्यूमन जीनोम का वो हिस्सा बन गया है वह भी इन्फेक्ट कर सकती है. इसीलिए ये बहुत आसानी से सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, विशेषकर जैसे सर ने बताया गे मेन में. ये पहले अपने आप को पूरी तरह क्रॉनिक होने देता है, उसके बाद इसका पैथोजेनिक साइड दिखता है. बहुत ही शीघ्रता से ये मॉर्फ करता रहता है, अपने स्वरूप को बदलता हुआ चलता है और दूसरे सेल्स, जैसे आपको बताया था कि शरीर के कई सिस्टम्स में, इंक्लूडिंग न्यूरल सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट, रीनल सिस्टम, इवन सेल्स ऑफ द हार्ट, ये मायोकार्डियम तक में कहीं मिला हुआ है, लीवर में. तो जितने भी हमारे वाइटल सिस्टम्स हैं ये हर जगह इन्फेक्ट करने में कैपेबिलिटी रखता है. कई सारे इसके वेरिएंट्स बनते जा रहे हैं. और जो अगली बहुत बड़ी इसकी चुनौती या फैक्ट की तरह कहिए तो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कई तरह के सिस्टम्स में इसका प्रवेश करते जाना और उनके साथ फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का शुरू होना. तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस वो वही बीमारियां हैं जो आमतौर से तो उनके कारक हमारे वातावरण में होते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम सही फंक्शन कर रहा है तो उन्हें वो बीमारियां नहीं हो सकती. इस केस में वह बीमारियां भी एड्स आते आते, एड्स की दशा आते आते शरीर पर हावी होती दिखती है. इसके बारे में कुछ साइकोसोशल फैक्टर्स के समझ होना या उसके बारे में चर्चा होना जरूरी है, और मुझे लगता है एक बार फिर इस पर काफी कुछ कह दिया गया है. तो मैं बड़े ही सारांशित रूप में इन सब चीजों को आपके सामने ले आ रहा हूं. ये शुरू हुआ है कॉलोनियल हिस्ट्री से. अफ्रीका की जो कॉलोनियल हिस्ट्री है वहां से इसका आरंभ है. कई सारे यूरोपीय देश जिनमें बेल्जियम है, जर्मनी है, नीदरलैंड्स है, बहुत सारे ऐसे देश जिनकी कॉलोनी हुआ करती थी पहले यूरोप में, अफ्रीका में, माफ करिएगा. और इन कॉलोनीज में ये एक विशेष प्रकार से रहा करते. तो उस पर हम जरा जाएंगे, बट सूचना के लिए ये बताते हैं कि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पिछली ही सदी में, लास्ट डेकेड में ही, पहले से कुछ स्टोर्ड सैंपल्स थे. लगभग 1200 ब्लड प्लाज्मा सैंपल उन्होंने अफ्रीका का जो आज कॉन्गो नामक नेशन है वहां के लोगों से लिए थे, क्योंकि वहां मलेरिया बड़ी तेज फैलता था और ये अध्ययन करना चाहते थे कि मलेरिया के क्या कारक हैं. ये शुरुआती फेज है, उसकी समझ और बनाना चाहते थे. जब एड्स होना शुरू हो गया, ये एक महामारी की तरह होना शुरू हो गया, तो इन्होंने उन 1959 के सैंपल्स को दोबारा उठाया और उसको पॉजिटिविटी के लिए चेक किया, और उनमें से एक सैंपल तो इन्हें पॉजिटिव मिल गया. ये वही टाइम है जब अफ्रीका कॉलोनाइज्ड था. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी कई दिनों तक वहां की कॉलोनाइज्ड हिस्ट्री है. ऐसे ही 1960 का फिर से एक बार कॉन्गो का ही स्पेसिमेन है जो 2008 में पॉजिटिव मिला है. ये लिम्फ नोड वो हिस्से होते हैं शरीर में, बड्स की तरह, मोतियों जैसे हिस्से, जिनमें कि हमारी टी लिम्फोसाइट्स, हमारी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है, स्टोरेज होता है. तो ये एक लगातार चल रहे चैनल्स हैं जो हमारे पूरे शरीर में होते हैं. इन तरह के शोधों को करने के बाद इनका मॉडलिंग किया गया. ये इस सदी की बात है, लगभग 2008 और इसके बाद. और ये आकलन लगाया गया कि कम से कम 1930 से तो HIV ह्यूमन पॉपुलेशन में सर्कुलेट कर ही रहा है. और इसके बाद अफ्रीका में ही पिग्मी ट्राइब्स मिलती हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था. ये उस रीजन में तो नहीं रहते, लेकिन ये बुश ट्रेड में इन्वॉल्व है. बुश ट्रेड एक तरह का परंपरागत ट्रेड है जिसमें कि मांस, जानवरों के मांस का ट्रेड होता है, या उनके शरीर के हिस्से, या इस तरह की चीजें जो आप आम तौर से शहरों में नहीं देखते. कि उस तरह की ट्रेड में इन्वॉल्व प्रजातियां रही. और जब इनका सेरोकल्चर देखा गया तो इनमें अलग तरह का इम्यून
डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स का देखा गया। जो मैं आपसे बता रहा था, CD8 का अपना ही सेल का प्रोटेक्टिव फैक्टर जो कि HIV को रिपेल करता है, ये उनमें पहले से ही था। तो ये कहते हैं कि संभव है कि ये बीमारी बहुत पहले से ही अफ्रीका में सर्कुलेट कर रही है, यहाँ तक कि वहाँ की कुछ प्रजातियां इससे इम्यून होती गई हैं, जेनेटिक रूप से उसका कुछ लक्षण मिला है। तो इसे ये फिर 1800s में भी ले जाते हैं, पीछे इसकी हिस्ट्री देखते हुए। जो इंटरेस्टिंग बात है, जो विशेष कर हमें चौंकाने वाली या समझ में आने वाली बात है, वो यही है कि वर्ल्ड वॉर II के बाद जब विश्व में रिबिल्डिंग एफर्ट्स चल रहे थे, वो फेज जिसमें सभी विकसित देश अपने आप को दोबारा बना रहे थे, और जिस फेज में अफ्रीका से बहुत भारी मात्रा में लोगों का आवागमन भी हुआ अलग अलग देशों में, वही फेज है जहां से कि ये बीमारी फैल जाती है। एक पैंडेमिक से एक एपिडेमिक से एक पैंडेमिक जैसी होने लग जाती है, और इसकी पहचान होना भी इसके बाद ही हुआ है 1985 में आकर। सो कोलोनाइजेशन के ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो शायद आज के दिन भी बहुत रेलेवेंट हैं हमारे लिए? तो सबसे पहली चीज इसमें आता है मास अर्बनाइजेशन। जो कोलोनाइज करते थे, कोलोनाइज करने वाले लोग, मैं जरा ग्रुप वाले फैक्टर्स को आपके सामने पहले रख दे रहा हूँ, जिसमें कि ज्यादा समूह का जोर है। एक व्यक्ति की यहाँ बात कम है, समूह का जोर ज्यादा है, और उसका प्रभाव कैसे एक व्यक्ति पर पड़ता है। तो मास अर्बनाइजेशन से क्राउडिंग होती है, और ये पैथोजेंस जो हमारे आसपास हैं, ये ऐसे क्राउडेड इन्वायरमेंट्स, यही उनको चाहिए फलने फूलने के लिए। तो अगर मैसिव क्राउडिंग वाली स्पेसेस बना दें तो इसमें बीमारियां जल्दी फैलती हैं। अगर यूरोप और अमेरिका का अपना सिटीज का ढांचा देखें, वो बड़ी सख्ती से वहाँ पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी किसी शहर की होगी ये उनके नियमों में है, और उससे ज़्यादा उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। मगर कॉलोनीज में किसी मुर्गी के दड़बे के जैसे बहुत ज़्यादा लोगों को रखा जाता था, ये करने के लिए कि वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट हों जो कॉलोनाइजर के फायदे की हो। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी डेवलप की जाती। तो आपको मालूम है कि अफ्रीका माइनिंग के लिए बहुत जाना जाता है, बड़े सारे खनिज पदार्थ अलग अलग तरह के वहाँ मिलते हैं, और कुछ ये पुराने आर्टिफैक्ट्स जिनको कई यूरोपीय म्यूजियम में आज तक रखा हुआ है, कुछ देश तो उनको, जैसे कि जर्मनी है, वो अब लौटा रहे हैं, उनको वहाँ से सुनियोजित तरह से लाए जाने की व्यवस्था, अफ्रीका के अंदर ही सड़क निर्माण की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें इसलिए की गई कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉलोनाइजिंग के लिए ज़रूरी थी, उसमें सपोर्ट के लिए ये किया गया। और इसकी वजह से वायरस एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम हो गया, क्योंकि पहले वो उसी हैबिटेट का हिस्सा था, उस नेचुरल इकोलॉजी का हिस्सा था। इतना ही नहीं, जब कॉलोनाइजेशन होता है तो अर्बन स्पेस का बड़ा अनचेक्ड तरह से, बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के, ज़्यादा नेचुरल हैबिटेट्स में इंक्रोचमेंट होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ हम आज तक इंडिया में देखते हैं, और हमारी अपनी भी हिस्ट्री बड़ी कॉलोनियल है, तो वो चीज़ हमें आज भी यहाँ दिखती है। सो ओवर एक्सटेंशन ऑफ अर्बन स्पेसेस इनटू द नेचुरल हैबिटेट्स। उस नेचुरल हैबिटेट्स में बंद बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जिनकी लाइफ साइकिल वहीं पूरी हो जाती है, लेकिन वो ह्यूमंस के इंटरफेसिंग में नहीं आते। यही कारण है जूनोसिस का। कई बीमारियां जो जानवरों से क्रॉस ओवर करके ह्यूमंस में आई है, उसका रीजन ये कॉलोनाइजिंग का ट्रेंड या इस तरह का जो तरीका है, यही बना है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है इसे देखना कि ये ओवर एक्सटेंशन करना, अन्यथा ही नेचुरल स्पेसेस में जाना, ये कभी अच्छा लग सकता है या इकोनॉमिकली बड़ा लाभकारी समझ आ सकता है, लेकिन इसके कुछ ऐसे दुविधापूर्ण परिणाम होते हैं जिनसे पूरे विश्व में अफरा तफरी मच जाती है। इकोलॉजिकली इनकोहेरेंट सिस्टम को सेट किया जाना, और वो भी बलपूर्वक। वहाँ के अपने लोग उस चीज़ को मना करते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर वो चीज़ बनाई जाती है जानबूझ करके,
जिससे कि इस तरह की इंटरफेसिंग, इस तरह के बहुत सारे पॉसिबल पैथोजेंस के आसपास आ पाना बहुत ज़्यादा संभव हो जाता है और उनका फिर उन जगहों से और दूसरी नई पॉपुलेशंस में प्रवेश करना भी संभव होता है। एक और बहुत ही अजीब सी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सेक्स ट्रेड पहले दुनिया में नहीं था, लेकिन कॉलोनाइजेशन के बाद इसे एक व्यवस्थित रूप से शुरू किया गया है और ये हिस्ट्री भी लगभग एक सदी पुरानी है और अभी तक ये चल रही है। अब खुद यूरोपियन और अमेरिकन देश जो एडवांस्ड हैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि वो इसे कैसे कंट्रोल करें। उन्होंने इसके लिए लॉ बना दिया, इसे लीगल बना दिया और सोचा कि ये चला जाएगा, लेकिन अपने यहाँ उन्होंने एक तरीका रखा और इन कॉलोनीज में अपनी मन मर्जी के हिसाब से सेक्स ट्रेड को शुरू किया, जिससे भी बड़ी रैपिडली HIV वायरस का ट्रांसमिशन दूसरी पॉपुलेशंस में हुआ है। नई तरह की ड्रग्स का यूज करना जो तकनीकी जानकारी के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण हमें मिली है, ओवर द इयर्स इनका अनसेफ यूज होना, कभी कभी जस्ट शौक के लिए यूज होना, ये भी कॉलोनियल जगहों की एक अनचेक्ड रूल ऑफ लॉ है। अब कॉलोनी बनाने वालों के समाज में भी वहाँ भी ये चीज़ दुर्भाग्य से बड़ी बुरी तरह से फैली हुई है और उनका प्रभाव इन अनभिज्ञ लोगों पर भी, जो पहले उस तरह के ड्रग्स यूज नहीं करते थे, उन्हें एक्सेस मिलती जाती है और वो इस माध्यम से भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से HIV के कांटेक्ट में आते हैं। कॉलोनीज में अपने बेसिक कंट्री की तुलना पुअर हेल्थ फैसिलिटीज छोड़ी गई थी, कहीं कहीं तो कोई भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं रही थी। तो यह भी एक कारण है कि इवन पिछले सदी में भी, पिछले 50 वर्ष जो सदी के अंतिम 50 सेकेंड हाफ रहा है, उसमें अफ्रीका में कोई बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं देखने को मिली है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में बहुत ही कम लोगों को, कुछ देशों में तो यहाँ तक कि मरीजों के केवल 10% को ये दवाइयाँ मिल पाती हैं या उस रूप में मिल पाती हैं कि जहाँ ये इफेक्टिव हो और इनकी ट्रैकिंग हो पाए। यूज ऑफ ब्लड एंड फार्मा प्रोडक्ट्स, जो कि कॉलोनाइजिंग के कल्चर से ही एक तरह से शुरू हुआ, नई मेडिसिन की जानकारियाँ और रिसर्च से ब्लड प्लाज्मा का ट्रांसप्लांट, बोन मैरो के ट्रांसप्लांट और कई सारे ऐसे चीज़ जो कि केवल शोध के माध्यम के लिए की जाती थी किसी समय, अब वो कहिए तो जानकारी की कमी या फिर ऐसी बातें कि जिससे लगे कि हेल्थ की बेनिफिट होगी, इस वजह से कई लोग उसका पार्ट बनते हैं। कुछ लोगों को बीमारियों के कारण इस तरह की चीज़ों को अपनाना होता है, बट जैसे लिखा हुआ है पुअर हेल्थ फैसिलिटी के कारण, ठीक स्टेरलाइज्ड उपकरणों का इस्तेमाल न करने के कारण ये रिस्क बन जाता है कि वही उपकरण कई बार इस्तेमाल में आ रहा है और नए पर्सन को वो बीमारी मिल जाए। अगला बहुत बड़ा कारण, जो सबसे भीषण कारण रहा है, जिससे अमेरिका में और यूरोप में ये बीमारी धीरे धीरे चली गई है, वो है फोर्स्ड और मास माइग्रेशंस। क्योंकि अमेरिकन कॉलोनाइजर्स ने अपनी नेटिव पॉपुलेशंस को धीरे धीरे प्रताड़ित करके उनकी संख्या ही बहुत घटा दी थी, तो काम करने वाले लोगों की कमी उनके पास हमेशा ही बनी रहती। वो धीरे धीरे करके अफ्रीकन पॉपुलेशंस को पिछली पूरी सदी और उससे भी पहले अबाउट 200-300 ईयर्स की ये हिस्ट्री है, जिसमें कि एक सुचारू रूप से इन्होंने अपने देश में अलग अलग जगह उनको वैसी ही निगलेक्टेड कंडीशंस में बसाया है। अमेरिका में इस संदर्भ में एक आइलैंड है जिसको हेती बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। थोड़े दिन पहले वहाँ, कुछ वर्षों पहले वहाँ एक भूकंप आया था जोरदार, और अभी भी दोबारा से ऐसा पुनरावृत्ति हुई है। हेती में विशेषकर गे पॉपुलेशंस आज के दिन बहुत ज़्यादा रहती हैं, जो कि मुख्य कॉलोनाइजिंग पार्ट से, कॉलोनाइजर्स के मुख्य एरिया जो अमेरिका में रहे हिस्टोरिकली 1960-1970, वहाँ से उनको दूर किया गया क्योंकि गे पॉपुलेशंस एक्सेप्टेड नहीं थे सोसाइटी के द्वारा। उस समय उसको क्राइम माना जाता था। इस पे धीरे धीरे चिकित्सकों का व्यू बदला और समाज में चेंज आया है, लेकिन उन्हें शुरुआत में वहाँ से हेटी भगा दिया गया था और उसके बाद उन हेटी के माइग्रेंट्स ने वापस, जब वो शहर में आते हैं, वो आपस में मिक्स होकर के बिल्कुल ठीक भीड़ और
उपचार की कमी वाली दशाओं में से जब वो निकल के आते हैं और वापस इन शहरों में, आधुनिक शहरों में आते हैं, तो आज के दिन सैन फ्रांसिस्को और ऐसी मॉडर्न जगहों में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के रेट्स हैं और लोग उनको ब्लेम करते हैं। एक समय था 1990 का जब हेती के लोगों को अमेरिका में एक कारक की तरह दिखाया जाता था कि HIV के कारक क्या है, और इसमें एशियंस की कॉलोनीज को भी चुना जाता था। तो ये साफ साफ ब्लेमिंग का एक तरीका था जो कॉलोनियल हिस्ट्री का हिस्सा रहा है, और इसके अंश हम अभी भी देखते हैं। ये अभी भी हमारे सामने किसी न किसी स्वरूप में प्रस्तुत है। इसी प्रकार अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, जो साइंटिफिकली प्रूवन इंटरवेंशन के तरीके हैं, विशेषकर एंटीरेट्रोवायरल तरीका या जुड़ी हुई बीमारियों से के उपचार के लिए जो बाद में बीमारियां आती हैं साथ में उनके उपचार के लिए तरीका, ऐसी फैसिलिटीज, ये भी कॉलोनीज में बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध नहीं होती, या उन कॉलोनीज के जैसे लोगों के लिए कहीं भी इतनी मात्रा में इनकी एक्सेस नहीं होती। तो इसीलिए इस बार इक्विटेबल एक्सेस का एक चैलेंज हमारे सामने रखा गया है। तो प्रोमिनेंट चैलेंजेस के अंतर्गत ये देखा गया कि एंटीवायरल जो थेरेपी है, इसको अब कई दिनों से मान्यता तो मिली ही हुई है। ये देखा गया है कि इसका सही कॉम्बिनेशन 3 एटलीस्ट 3 अलग तरह की एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स मिला करके जब इसको यूज करते हैं तो वायरस का रेप्लिकेशन घट जाता है। ये चीज अभी देखी गई है। तो मैं चैलेंजेस पे आ गया हूँ। ये पिछले कुछ दशकों से चल रहा है और डॉक्टर्स जहाँ की वो 1985-1990 में इस बीमारी का बहुत बड़ा सर्ज देख रहे थे, वो अब ये मानते हैं, ये समझते हैं कि इस ट्रीटमेंट के साथ, इस पर बने रहने के साथ सफिशिएंटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी बनी रह सकती है। ये सफिशिएंट है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि कितने दिनों का उसका जीवन काल होगा इस मरीज का, लेकिन कम से कम अनट्रीटेड मरीज की तरह ये नहीं होगा। इस आजकल HIV के एंटीरेट्रोवायरल मेडिकेशन पे 35 साल का जीवन काल अभी भी रिकॉर्डेड है और ये मरीज जिंदा हैं। ये अभी भी अपने कार्य पूरे कर रहे हैं और एजिंग में जा रहे हैं। मतलब अगर कोई यंग पर्सन, यंग क्या कोई मिडिल एजेड पर्सन भी 1980s में ये इन्फेक्शन पाता तो ये कह सकते थे कि इनका जीवन काल ज़्यादा नहीं होगा। जैसे बताया गया था सर के द्वारा कि 4 या 5 वर्ष मैक्सिमम और औसतन 3 वर्ष। तो ये कहा जाता था कि आप अपना जीवन 2 या 3 सालों में पूरा कर लें, जो चीज़ें छूटी हैं। लेकिन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आने के बाद अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रोलॉन्ग हो रही है। ऐसे लोग अपनी फैमिली भी बना सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की वजह से वो ऐसा कर सकते हैं कि उनके बच्चे में इस तरह के इन्फेक्शन ना हो, इसे किया जा सकता है। और ऐसा लाभ कुछ लोगों को, कुछ भाग्यशाली लोगों को ये मिल रहा है जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। पर यह भी बात सही है कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के अपने टॉक्सिक इफेक्ट्स कुछ लोगों में आते हैं, तो उसको लगातार मॉनिटर करते हुए चलना पड़ता है। आप यूं मानिए कि जैसे कैंसर का अगर कीमोथेरेपी किया जाए तो वो बड़ा ही भारी सा इलाज है, वो शरीर पर अपना खुद का एक टोल लेता है। तो एक वजह कि हमारे सामने एक चुनौती है कि लोग दवा होते हुए भी कम से कम उन देशों में जहां पर की रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, वो फिर भी दवाएं न ले रहे हो, उससे बचने का प्रयास कर रहे हो। तो इसका कारण कई बार ये जो मेडिसिन के इफेक्ट्स हैं, स्पेशली साइड इफेक्ट्स, ये कई बार हेवी होते हैं और इनका मैनेज करना उनसे नहीं हो पाता। वो मोटिवेटेड नहीं दिखते हैं और वो बीच में इन दवाइयों को छोड़ देते हैं। तो एक कारण वो एडहियरेंस न होने का ये है। मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर बगैर किसी स्लाइड की सहायता ही आपको बता देना चाहता हूँ और इसे मैं बहुत जल्दी ही कंक्लूड कर दूंगा क्योंकि मैंने अपना समय लगभग तेजी से 5:30 तक ला दिया है और इसका पता अभी देख करके चल रहा है।
तो सबसे पहली चीज जो सबसे, अगर हम क्रमबद्ध तरीके से देखें कि आखिर समस्या आती कहाँ है, तो सबसे पहली चीज इसकी टेस्टिंग, जैसे सर ने बताया था, तो ये कुछ रिपीट हो रहा है इसलिए मैं इसे जल्दी से आगे ले जाऊंगा। तो सबसे पहला प्रोमिनेंट बैरियर टेस्ट का सही मात्रा में उपलब्ध नहीं होना, और विशेषकर उन पॉपुलेशंस में जहां ये आसानी से फैल सकता है, मतलब गरीब देशों में। सो टेस्टिंग की व्यवस्था न होना। दूसरा, मरीज के या पॉसिबल इन्फेक्टेड लोगों को इसकी जानकारी की कमी होना। ये आज भी एक समस्या की तरह है। अब हम 40वें साल कम से कम जो डॉक्यूमेंटेड फेज है HIV का, इसके 40वें साल में है, और अभी भी इंफॉर्मेशन तक कुछ पॉपुलेशंस में नहीं है। मैं जरूर कहूँगा कि यहाँ तक कि गांव में भी हमारे यहाँ कुछ लोग इससे अनभिज्ञ रहते हैं, इसके बारे में जानना नहीं चाहते। उसके पीछे मिस इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ होता है। तो एक इंफॉर्मेशन की कमी और दूसरा साथ में जुड़ी हुई मिस इन्फॉर्मेशन। इसके कारण व्यक्ति अगर टेस्ट की व्यवस्था है तो उसका लाभ नहीं लेता। तो सबसे पहली चीज ये है। दूसरी बात जो गुरुजी ने बताई थी, स्टिग्मा। जो लोग इसके बारे में जानते भी हैं वो इसे छुपा के रखना चाहते हैं। पता नहीं क्यों छुपे हुए रूप से ही सही डॉक्टर की एक्सेस हो पाना, ये अभी भी मैं अगर अपने देश के संदर्भ में कहूँ तो इतना संभव नहीं होता है। ये डॉक्टर का अपना विशेषाधिकार या उसकी समझ बूझ है कि वो इस पेशेंट को किस तरह से ऐसे ट्रीट करे कि ये बाकी और मरीजों की तरह ही आए। अपनी रिस्क कि जैसे इसके अगर हाथ पे कोई कट है तो उसके बावजूद कोई दूसरा इससे इन्फेक्ट हो, इस रिस्क को बचा ले, और फिर भी इनके लिए उपचार के तरीके उसी माध्यम से उपलब्ध होते हैं, सरलता से उपलब्ध हो जैसे कि और लोगों के लिए होते हैं। ये न होना एक और कारण है जिसके कारण लोग इस ट्रीटमेंट में आते ही नहीं हैं। इसकी जांच तक नहीं करवाते कि उन्हें ये बीमारी है या नहीं। चौथी बात है इसका अफोर्डेबल होना, कि अगर टेस्ट करा लिया है तो फिर क्यों नहीं दवा शुरू करना चाहते हैं। तो इसकी अफोर्डेबिलिटी धीरे धीरे अरेंज हो रही है, इस माध्यम में आ रही है कि इसे गरीब देश, लो इनकम कंट्रीज या मिडिल इनकम कंट्रीज, दोनों की ही क्वालिटीज हम इंडिया में देखते हैं। कुछ हिस्से हैं जहां बहुत ही गरीब तबके हैं और कुछ ऐसे हैं जहां पर कि मध्य इनकम वाले लोग हैं। तो मध्य इनकम की पहुंच में तो एंटी रेट्रोवायरल अब आता चला जा रहा है, पर गरीब तबकों के लिए जो प्रोग्राम्स चलते हैं वो असल में कितना उस व्यक्ति तक पहुंच पाए, पहचान करा पाए उसकी, इस पर समस्या आती है। क्योंकि सरकारी रूप से जो पहचान का तरीका है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं उपलब्ध है। ये सूचना कि कौन मरीज बीमार है अगर उसके गांव में फैल जाए, उसके समुदाय में फैल जाए, तो उस व्यक्ति का जीना वास्तव में दूभर हो सकता है अपने साथियों में। और कुछ वैसे डर जो कि पुष्ट हैं, हालांकि वो सबके साथ वैसे घटते नहीं हैं, लेकिन उनकी पुष्टि हो चुकी है। जैसे आजकल पता है कि ये सलाइवा में भी है, पहले कहते थे कि सलाइवा में इतना नहीं है, बट ये अब मालूम है कि सलाइवेशन से भी ऐसा हो सकता है। तो इतना ज़्यादा चांस होने से लोग स्वाभाविक है कि डर जाते हैं। तो एक कॉन्फिडेंशियल रास्ता जिसमें कि उनकी पहचान गोपनीय रहे, ये सिस्टम ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो पॉलिसी बनती है HIV को पहचानने के लिए कि कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं, क्यों नहीं वो टेस्ट में आ रहे हैं, वहाँ ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाला एस्पेक्ट होना चाहिए। लोगों को बताया जाना उसका एक पूरक पक्ष है कि जो लोग अनइन्फेक्टेड हैं उन्हें भी पता चले कि एक बार एंटी रेट्रोवायरल पे आते हुए फिर इन लोगों में इन्फेक्शन तो होता है, मतलब HIV उनके ब्लड में, इनकी CD4 सेल्स में होता तो है, पर इतनी रेप्लिकेशन नहीं करता, तो वो दूसरे को इन्फेक्ट करने की जो चांस है वो बहुत कम होती है। विशेषकर अगर ये पहले ही साल या 6 महीने इन्फेक्शन के वहाँ पकड़ा गया और वहीं से रेट्रोवायरल स्टार्ट कर दिया है, तो ये चीज़ देखी जाती है। ये दूसरा बड़ा कारक बनता है जिसकी वजह से मरीज आना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसका एक तो जैसे पहले बताया था टेस्ट उपलब्ध नहीं है, अगर है तो कॉन्फिडेंशियली उसको वो टेस्ट कराने की
सुविधा नहीं होती, अक्सर ही जानकारी समुदाय में चली जाती है और इन मरीजों को सच में बड़े ही दुर्भर दिन देखने पड़ते हैं। तीसरी चीज है कि जो ये दवाएं हैं, जैसे आपको यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है, इनका अपना साइड इफेक्ट होता है और इनको मैनेज करने के लिए फिर अलग दवाएं चलानी पड़ती है। और इतनी सारी दवाएं इकट्ठा हो जाना, हम आप में से कोई भी सोच कर देखिए, अगर हमें जरा सा बुखार ही हो जाता है तो हम कितनी दवा कितनी नियम से खा पाते हैं। अगर डॉक्टर ने 4 लिखी होगी और कहा होगा कि आप इन 4 दवाओं को 1 हफ्ते तक खाओ, स्पेशली अगर वो एंटीबायोटिक है, तो आप जानते हैं आप में से कितने कितने दिन खाते हैं, वो अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो ये जो एडहियरेंस है कि व्यक्ति आ तो गया चिकित्सा के द्वार तक, लेकिन जैसा बताया गया वैसी चिकित्सा नहीं कर पा रहा है, उस नियम से नहीं कर पा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कुछ सपोर्टिव इंटरवेंशन चाहिए होता है फार्माकोलॉजिकली, जिसके की कारण उसको ये जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मैनेज कर सके। अगर ये HIV का इन्फेक्शन एड्स तक प्रोग्रेस कर गया है तो फिर, और ये कई बार लोगों में होता है कि इवन दो उनके साथ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चल रही है, वो फिर भी कुछ समय के बाद अगर इसकी शुरुआत ठीक समय पर नहीं हुई थी तो ये होता है कि उनका एडवांसमेंट एड्स के स्टेज तक चला जाता है। फिर उनको अलग अलग बीमारियां और इतनी सारी दवाइयां कि जिसकी हम शायद नहीं कल्पना कर सकते। तो ये भी एक कारण है। मेरी दृष्टि में जैसा मुझे समझ में आया, ये कारक जो दवाइयों की उपलब्धता होते हुए भी मरीज दवा न ले, ये भी बहुत खतरनाक है। इसका कारण मैंने आपको बताया था। इसका कारण ये है कि दवाएं की तरफ ये जो नए स्ट्रेन्स HIV के बनते हैं ये रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। और पिछला UNAIDS का डेटा ये दिखाता है कि जिन कॉन्टिनेंट्स में ऐसा हुआ है वो लगभग सारे के सारे ही मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जहां ये फैला हुआ है। ड्रग रेजिस्टेंस अफ्रीका में तो है ही, वहां होने का कारण दूसरा है कि इन दवाइयों की उपलब्धता लगातार मौजूद नहीं होती और अधिकतर लोगों को तो नहीं ही मिल पाती। सबसे पहली तो ये चीज है। दूसरा, इनका लगातार चलना न होना और जिस कॉम्बिनेशन में कहा गया मरीज का, उस कॉम्बिनेशन में उसको लगातार न खाना, कुछ एक छोड़ के करना, तो जो पैथोजन है, जो वायरस है, वो अब इस पर सरवाइव करने वाले जो स्ट्रेन्स बने होंगे उसके अंदर वो स्ट्रेन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट वो दवा काम नहीं करती। यही चीज हम बैक्टीरिया में भी देखते हैं। लोग कई सारी एंटीबायोटिक्स अगर डॉक्टर ने कहा है कि दिन की 2-5 दिन तक खानी है, वो शायद दूसरे या तीसरे दिन एक एक गोली ही खा करके छोड़ देते हैं और वो बैक्टीरिया के जो स्ट्रेन्स उतनी सी डोज को सरवाइव कर गए हैं वो अगली बार उस दवा का और अच्छी तरह से विरोध कर पाएंगे। तो वो जब फैलेंगे तो ये एक नए स्ट्रेन की तरफ फैलेंगे। तो ये जो अगला बहुत बड़ा चैलेंज अब सर पर खड़ा है, जिसकी वजह से सारे के सारे ही डॉक्टर्स ने, जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक तरह से अपील की है कि इसकी इक्विटेबल एक्सेस दी जाए और हो सके तो उन्हीं देशों में ये बने जहां पर इनकी जरूरत है। तो ये अगली चुनौती थी जिसके कारण की समस्या आती है और इनके साथ गूंधे हुए साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर्स हैं, जिसमें मरीज की अपनी खुद की बिगड़ती हुई मानसिक दशा, क्योंकि उसे इतना तिरस्कार झेलना होता है, और कुछ अनयूजुअल तरह से उसका डेवलपमेंट जो हुआ हो। आप कह सकते हैं कि आप मेल टू मेल सेक्स में इंटरेस्ट, रुचि रखने वाले लोगों को यूजुअल नहीं मानते हैं। वो इतने यूजुअल लोग नहीं हैं, वो हमारे आसपास होते हैं पर हमारी जानकारी में नहीं होते, उन्हें छुप के रहना होता है। तो इस तरह का तिरस्कार जो समाज में झेलना पड़ता है, उसमें चुपचाप ये बीमारी भी उनके साथ साथ घर करती चली जाती है। इसीलिए बात आती है इक्विटेबल अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरवेंशन की, कि वो एक्सेस हर एक व्यक्ति को मिले। मैं अपना प्रेजेंटेशन पूरा करने से ठीक पहले एक बात फिर से हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने कुछ बीमारियों के नाम रखता हूँ, इनको आप सब जानते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग, ये कुछ सदियों पहले बड़ी बुरी तरह से फैला था। स्पेनिश फ्लू के जैसा एक बहुत ही तेज फैलने वाला
ये कारक था। उसके अलावा कोलरा, डेंगी, डिप्थीरिया, मीसल्स, मलेरिया, मम्प्स, शिस्टोसोमासिस, ये भी एक तरह का एंडेमिक रहा है। स्मॉल पॉक्स एक पेंडेमिक रहा है। ट्यूबरकुलोसिस भी एक तरह का पेंडेमिक रहा है। यहाँ तक कि टाइफस डिजीज भी एक पेंडेमिक रही है। येलो फीवर और हाल वाला कोविड-19, जिसको मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन हम इन सभी को अगर देखें तो ये सारी की सारी ही पैंडेमिक स्वरूप में प्रस्तुत हुई और उसके बाद हम इनके साथ जीना शुरू कर चुके। एड्स और कोविड-19 में ये बात अभी सही नहीं आती है। थोड़े ही दिन पहले जब G7 की बैठक हुई थी तो कुछ देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे ब्राजील और इंडिया ने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी वैक्सीन्स जो कि अधिक कारगर समझ आती है उनका प्रोडक्शन अफ्रीका या उन देशों में, ऐसी जगहों पर जहां गरीब देश हैं, वहीं पर उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करके प्रोडक्शन करा सकें ताकि सभी को ये मिल सके। हम साइकोलॉजिकल अवस्था समाज की तुरंत तो बदल सकते हैं, लेकिन कुछ समय में तो बदल सकते हैं, लेकिन अभी की एकदम त्वरित आवश्यकता ये है कि ये दवाएं इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट की जाएं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण हमारी जो प्रेजेंट कंडीशन है पैंडेमिक के चलते जाने की, एड्स के भी और इसके साथ साथ कोविड-19 के भी। Sorry to interrupt you, sir. Vishnu Saran, sir, please conclude. Yes, I'm about to do that. Please give me 2 Most minutes. of the students are waiting for concluding. Yes, I'll just do that. तो जो सबसे ज़रूरी बात है यहाँ पर, वो लॉन्ग टर्म में साइकोलॉजिकल सोशल चेंजेस तो लाने ही हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अभी जीवन बना रहने के लिए इक्विटेबल एक्सेस टू मेडिकेशन जो सामने हमने रखा हुआ है यहाँ स्लाइड पर, वही सबसे ज़रूरी लगता है। मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहाँ पर थोड़ा जल्दी से वाइंड अप कर देता हूँ। हमने देखा कि कई सारे इस पैंडेमिक और अभी जो चल रही है वह वाली पैंडेमिक भी कई सारे और पैंडेमिक्स की तरह इमर्ज की है। किसी तरह से सभी देश, सभी समाज इकट्ठा होकर के उनको कंट्रोल करने में संभव योगदान दे पाए हैं और वो अब कंट्रोल में है क्योंकि उनका इलाज आसानी से सभी के लिए उपलब्ध है। ये बात अभी एड्स पर और अभी सबसे रीसेंट वाली कोविड-19 पर एक जैसी लागू नहीं होती हुई दिख रही है। अभी तक भी ये दवाएं कई लोगों के हाथों में नहीं है। तो मैं इसी बात पर जोर देते हुए आज का अपना प्रेजेंटेशन पूरा करूंगा। एक बार फिर यहाँ पर मौजूद मेरे अग्रज जिन्होंने बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें पहले ही बताई हैं, उसमें साइको सोशल फैक्टर्स का उन्होंने विशेषकर योगदान बताया है, उनका धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रिंसिपल प्राचार्य डॉक्टर राकेश, कन्वीनर डॉक्टर शामिनी और बाकी और सदस्य जिनकी वजह से ये संभव हो पाया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही प्रयास करूंगा कि अगला मेरा प्रेजेंटेशन और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आप सभी के लिए हो। जो मेरे छात्र हैं और ये सोच रहे हैं कि ये स्लाइड्स रंगीन क्यों नहीं है, वो मैं अगली बार और भी दुरुस्त करके दूंगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच विष्णु सर, हमें चैलेंजेस और बैरियर इतने अच्छे से बताने के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम इंडिया वर्ल्ड का रिकॉर्ड बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर शामिनी मैम टू give away the vote of thanks and compile the whole session. Thank you, ma'am. Thank you, Harleen. Our principal Rakesh Singh wanted to do the vote of thanks, but he has some other engagement right now. So on the behalf of our principal, I would express my vote of thanks. I, Dr. Shamini Srivastava, on the behalf of the Psychologists and Association of Psychology and Department of Psychology, Feroz Gandhi College, Raebareli, would express my sincere gratitude to our honorable speaker, Professor Ramji Lal, former head and dean, Department of Applied Psychology and General Secretary, CPAI, who enriched our knowledge through the topic community view towards HIV/AIDS. He first introduced about the HIV and
he told us from where and how this HIV virus transmitted to the human beings. He told us also that it is not curable, so prevention is very important. And he discussed about the different prevention strategies. He also expand our knowledge through examples from his research work. Again, I would like to express my sincere gratitude to our Mr. Vishnu Sharan, Assistant Professor, Department of Psychology, Firoz Gandhi College, Raebareli. His topic of presentation was HIV/AIDS challenges and barrier to prevention and intervention. He also focuses on biological part of HIV/AIDS virus. It was a very informative session. I also extended my gratitude to our honorable principal, Dr. Rakesh Singh, for providing us immense support to make this webinar successful. I would like to express my gratitude to all participants of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. And at last, but not the least, I would like to express my thanks to the organizing team, technical team, and volunteers for working hard for past few days to make this webinar successful. Thank you everyone once again for making this great success. Thank you so much. Over to Harleen. Thank you so much, Shamini ma'am. I would request everyone to fill the feedback form so that we can get away your participation certificates as well. Thank you so much, ma'am. Thank you again.